Hello and welcome to the Daily Hindu Analysis. So this is an exercise that we have been doing since the past couple of weeks, wherein we try to understand the complex topics that are coming in the newspapers. So basically the idea is I'll tell you the concept behind it, like what all is getting along. Then you have to read it from the newspaper itself so that you are better equipped, right? So you can work upon your vocabulary portion also and how sentences are getting framed. So let us understand this topic. So I've been telling you people about this फ्रॉम आई गेस पास्ट 1 वीक राइट, और इसमें मैंने आपसे बोला था कि इसको इशू को पूरा बन जाने दो, फिर इस पर डिटेल में कुछ बात करेंगे. फिलहाल के लिए अभी जो डेवलपमेंट आया है वो ये है कि एज एवरीवन नोज दैट देयर आर इलेक्शंस इन बिहार इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, राइट. तो इलेक्शंस में वोट कौन करेगा? पीपल लाइक अस. ठीक है, तो द पीपल हु कैन वोट इन एनी इलेक्शन, द लिस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्टोरल रोल. सो इलेक्टोरल रोल इज द लिस्ट on which the name of every person who is eligible to vote is written. Now in India there is concept of universal adult franchise or universal adult suffrage, which means any person who is above the age 18, irrespective of his caste, color, race, gender, sex or place of birth, can vote in India. So this is written in the article 326 of the Indian Constitution. Hence I can say voting is my constitutional right. So right to vote is a constitutional right because it is mentioned in article 326 of the Indian Constitution. Now the issue is कि अभी ना Election Commission of India. Now what is Election Commission of India? Election Commission of India is an constitutional body since it is mentioned in the Constitution in article 324. It is a constitutional body which looks after superintendence, directions and control of the presidential election in India, the vice presidential election in India, the election of Lok Sabha and Rajya Sabhas, which is for the MPs, and your state legislative assembly and state legislative councils elections, which means MLAs, right? So it's a very powerful body. Now it has 3 members. It is a 3-member body. So Election Commission of India has 3 commissioners into it. So obviously the body will have a lot of people within it, but there are 3 commissioners, right? So earlier when we got independent in the year 1950, only had 1 election commissioner. Now in the year 1989, by making a change into the Indian Constitution, because it is a constitution body mentioned in article 324. Now since we had to increase the number of election commissioners, we had to make a change in the constitution per se. Reason why, in the year 1989 the constitution was amended for the 61st time ever since its inception in the year 1950. So your 61st constitutional amendment act of 1989 increased the election commissioners from 1 to 3, and secondly reduce the voting age from 21 to 18. So all of this becomes very important for your examination. Now what is the news? तो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि बिहार के इलेक्शन से पहले हम एक इलेक्टोरल रोल निकालेंगे, है ना. नाउ फॉर वन टू गेट रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, उसको अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी. इसका मतलब ये है, for you to be eligible to vote in India, you need to be an Indian citizen first, right? Only once you are an Indian citizen, only then you get this right mentioned in article 326. Now they said कि जिसका जिसका भी नाम ना Citizenship Amendment Act 2003, देखो अभी बात समझो, मैंने क्या बोला? Any person who is a citizen of India is eligible to vote, can vote, right? Now who determines who is an Indian citizen, right? So the Constitution specifically in its part 2 from article 5 to 11 talks about who is an Indian citizen. Now for future cases the Constitution will be an Indian citizen. Now Parliament did this by passing an Act of 5 which regulates the citizenship laws and rules in India. Now this very act keeps on getting amended every time. So when you read CAA, any amendment to the Constitutional Amendment Act is being signified to 1955 itself. So now what we understand that the citizenship rights are with the Parliament of India, right? So now what the Election Commission is doing is, it is performing an exercise of making an electoral rule for itself. Now what they have found is that a lot of people who had themselves registered here were coming from countries like Nepal, Bangladesh, Bhutan. Abhi now this is something to worry about, right? Because these people are not Indian nationals and they are getting to vote. Now since this issue is getting politicized a lot because opposition कह रहा है
कि ये लाइक दिस इज समथिंग, ये जानबूझ के कर रहा है, लाइक बीजेपी इज डूइंग दिस ऑन पर्पस, इट इज यूजिंग इलेक्शन कमीशन टू एक्सक्लूड सर्टेन पीपल आउट ऑफ द इलेक्टोरल रोल सो दैट दीस पीपल कैन नॉट वोट और वो वहाँ पे इलेक्शन जीत सके। बट तो यही चीज़ है, तो ऑपोजिशन बहुत पॉलिटिक्स आ गई है इस इशू में। तो फिलहाल जो एग्जाम से रेलिवेंट चीज़ें हैं, है ना, वो हमने समझ ली हैं थ्रू दिस स्लाइड। नाउ यू कैन जस्ट रीड दिस article, right? So let us move on to the, so that is that what a day it is, 14th of July, right? Chalo. Now the first issue is about Maratha military landscapes in UNESCO World Heritage List. Now to understand this issue, but firstly we have to understand what World Heritage List is all about, right? World Heritage List कि इसको रिलीज कौन करता है ना, इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, अगर इस लिस्ट में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो ऑल ऑफ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, like there would be something very special about these landscapes which made them come in the World Heritage List, right? So we'll understand this issue. I'll try to draw a flow chart wherein I am explaining you everything about this topic. You can read it from the PDF also, or you can refer to your newspapers. Chalo, so let us understand this topic. Chalo, so your first issue is about UNESCO World Heritage Sites. Listen, so everyone I would assume knows what UN is, right? United Nations, a peacekeeping body established to maintain the world order. So United Nations makes sure that there is global peace. So United Nations was formed in the year 1945, just after the World War II happened. 1945. Now UN has certain specialized agencies after their different work, right? So now UN has made a body which is known by the name UNESCO. So it is an UN specialized body, right? UN specialized body. Now UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So UNESCO makes sure that in case they have to work for education, or let's say they have to work for the cultural part or scientific discoveries, if any of them are happening, UNESCO makes sure that there is equitability and they are reaching out to everyone. So it tries to make education, science and culture accessible, affordable and available to everyone, right? So now UNESCO has this list by the name World Heritage Sites. Now what does World Heritage Sites stand for? So basically there are certain monuments, there are certain monuments. These monuments, certain monuments are of historical importance. They have some cultural significance. They have something which is required for the society at large, right? So these monuments are preserved by UNESCO. Not every monument will get preserved by UNESCO. Certain monuments of some significance will get protected by UNESCO. Now Italy has the highest number of World Heritage Sites. Italy has around 60 World Heritage Sites, right? Now you'll ask, where does India stand? So India is globally ranked 6th. It is globally ranked 6th and has around 43 plus 1 World Heritage Sites. Now this one stands for Maratha landscapes. Stands for your Maratha landscape. We'll come on to it. Maratha landscape. So now we have understood this. Abhi dekho, ye now Maratha landscape got included in the 47th session of World Heritage Committee. Now what is the World Heritage Committee? So now UN, like UN, so UNESCO is a specialized agency of UN, right? Now UNESCO has around 194 members into it, so they can't be asking 194 members for every trivial issue, right? So what they have done is they have delegated their work of assigning different things into World Heritage Sites by forming a committee called as World Heritage Committee. Now your World Heritage Committee has 21 members and India is amongst them. Now this membership is not permanent and India is only a member from 2021 to 25. That is why you will see in the past couple of years a lot of Indian heritage sites are getting included into the World Heritage Sites. I hope you would have understood it. Now let us understand what the Maratha military landscape is all about. The Maratha military landscapes, I guess you would have heard about guerrilla warfare, right? So guerrilla warfare was a special technique used by the Marathas. It was usually used by peoples who lived on plateaus. तो वहाँ पे ना ये छुपके मारते थे एक दूसरे को. तो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए कुछ मराठा के किले थे, कुछ फोर्ट्स थे जिनका ये शिवाजी ने यूज करना शुरू किया टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द मुगल्स और एनी कोस्टल अटैक दैट वुड हैपन इनटू द ग्रेट मराठास.
तो उस टाइम पे मैप इस तरीके से हुआ करता था, मराठास यहाँ थे, तो यहाँ कोस्टल अटैक्स भी हो सकते थे और मुगल्स से भी अटैक हो सकते थे, है ना। तो व्हाट शिवाजी डिड, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, शिवाजी महाराज जी, व्हाट छत्रपति शिवाजी महाराज जी डिड इज दैट ही मेड अराउंड 12 फोर्ट्स फॉर देम। अब ये सारे 12 उन्होंने नहीं बनाए हैं। सो मराठास वर रूलिंग फ्रॉम द 17th till the 19th century in India, है ना। So they were some significant, they had some certain power in India in these 200 years. So they had built around 12 forts, out of which 11 are in Maharashtra and one is in Tamil Nadu. You don't have to remember the names, just try to understand the geography per se, right? These Marathas were ruling somewhere around this place. So yeah, that is that. So these Maratha landscapes have been added into the World Heritage sites. The World Heritage Site list is released by UNESCO, which is an UN specialized body, and UN was formed in the year 1945. Also, UNESCO was established in the year 1945 itself when UN was established. India was a founding member. India was a founding member. Like India was there when UNESCO was getting formed. Was a member of UNESCO, founding member. Also, the headquarters of UNESCO are situated in the fashion capital of the world, that is Paris. So your Paris is the fashion capital of the world, and your headquarters for UNESCO are also situated in Paris. Which narrow body, which narrow water body divides Britain and France? Please give me answer to this question in the comment section, right? If you're watching it. So tell me which of the following water body divides Britain and France. चलो, let us move on to the next issue now. इसको एक बारी पढ़ लोगे, इस न्यूज़ को वापस एक बारी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई हैं मोर और लेस यही है। ट्राई टू कीप इन लाइक ट्राई टू कीप ऑल दोज पॉइंटर्स इन योर माइंड and just read it once. Either you read it from your newspapers or you go through these slides. So I would recommend personally you have your own newspapers, but in case you don't, you can also have these with you. Chalo. Now let us move on to the next topic. Now what is Operation Shiva? देखो, give me a second. चलो, your second news is about Operation Shiva. We just have to remember this as a one liner, लेकिन तब भी कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, न्यूज समझ लेते हैं, बस याद रखेंगे एक आखिरी में लाइन जाके, बट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट अमरनाथ यात्रा, है ना. तो अमरनाथ यात्रा इज वेरी sacrosanct. sacrosanct sacrosanct means pious. So this is very sacrosanct for Hindus, right? Lakhs of Hindus every year visit or go through the Amarnath Yatra. Now, to go to Baba Barfani, or what is popularly called as Amarnath Yatra, there are two routes, right? So one is your Pahalgam route, जहाँ पे अभी अटैक्स हुए थे, आप ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड है. और एक है आपका बालतल रूट. ये वाला रूट बहुत लॉन्ग है ना, दिस इज वेरी लॉन्ग. बट ये बालतल रूट इज शॉर्टर, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्टीपर. तो पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है और ये बहुत स्टीप पहाड़ है ना, तो रिस्कियर है. तो देर आर टू रूट्स. अब यहाँ से शरण आरती जाएंगे, है ना. यार द पीपल हु वुड गो फॉर अमरनाथ यात्रा विल गो थ्रू दीज रूट्स. एवरीवन नोज दिस पहलगाम टेररिस्ट अटैक हैपेंड ऑन 22nd of April दिस ईयर, राइट. तो खतरा इस बार भी है, ऐसा है कि हो सकता है कि लाइक देयर माइट बी सम टेररिस्ट अटैक. नाउ टू स्टॉप दिस, व्हाट द इंडियन आर्मी हैज डन इज, एक तो आर्मी, इसके साथ में वहाँ का लोकल सिविल पुलिस, और उन्होंने साथ में जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जैसे आपका CRPF, ITBP, है ना, ऐसे लोग इधर से कुछ बटालियन उठाई, कुछ आर्मी से उठाई, कुछ सिविल पुलिस से उठाई, और एक ग्रुप बनाया. और उस ग्रुप ने अब अपने लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया विच इज ऑपरेशन शिवा. इसमें ये लोग करेंगे क्या, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दीज पीपल फ्रॉम एनी टेररिस्ट अटैक, एनी पॉसिबल टेररिस्ट अटैक, if there is any possible attack on these people. So operation shiva is for this. अब इसमें we have to understand certain points which become very important for our examination. तो इसमें आप एक चीज याद रखो, बस छोटा छोटा ये थोड़ा सा याद रखो कि ये now we are using counter unmanned aerial vehicles also. अनमैंड एरियल व्हीकल स्टैंड फॉर ड्रोन्स. देखो, अनमैंड मतलब इंसान नहीं है, एरियल मतलब हवा में है, व्हीकल मतलब गाड़ी. ड्रोन क्या है, व्हीकल है, हवा में है. अनमैंड है, आदमी नहीं है, एरियल है और व्हीकल है. तो ड्रोन्स को ना UAV भी बोलते हैं. तो जो पाकिस्तानी ड्रोन्स पॉसिबली आ सकते हैं, उनको काउंटर करने के लिए वी हैव इम्प्लीमेंटेड फ्यू थिंग्स. इसके बाद वी हैव पुट इन PTZ कैमराज. वी हैव पुट इन PTZ कैमराज. PTZ कैमराज आर पॉपुलर फॉर द 360 डिग्री कवरेज. तो ये इतना कुछ याद नहीं रखना, ये बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक ऑपरेशन शिवा अब आप सुनते रहोगे ना, अमरनाथ यात्रा होगी, तो यू विल फाइंड दिस टर्म इन द न्यूज़पेपर्स वेरी फ्रीक्वेंटली. जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुज. चलो, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड न्यूज़ नाउ.
या आप पढ़ लेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस। अच्छा चलो, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ द थर्ड न्यूज़ इज अबाउट इंटरनेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। टेल मी व्हाट इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट? देखो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, अर्लियर ना, लाइक इनिशियल टाइम्स में जब हमें आगे के जनरेशन्स को कुछ बताना होता था, तो वी व्हाट वी यूज टू डू इज दैट वी यूज टू राइट इन्फॉर्मेशन ऑन पीस ऑफ पेपर, या उससे पहले जो पीपल ट्री होती है इस पे लिख देते थे, है ना। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, एक छोटा सा बस याद रखो। नाउ पेपर, और अच्छा इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई, मतलब इंडिया में पेपर कौन लाया? इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी पोर्चुगीज़ ने, मतलब इंडिया में पेपर को इंट्रोड्यूस किसने किया? पोर्चुगीज़ ने। इन विच ईयर? 1556, और इट वॉज इन गोवा। चलो, अब चलो वापस न्यूज़ पे आओ। तो पहले क्या होता था, पेपर पे या फिर पीपल के ट्री पे हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखा करते थे, और जो हाथ से लिखी इन्फॉर्मेशन होती है ना, हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अब ऐसा बोला जाता है जितने भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, लाइक वेदास, कुरान, बाइबल, ऑल ऑफ दीज आर आल्सो रिटन इन सम फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो हैंड रिटन हुआ करता था मोस्टली, है ना। अब इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, यस और नो? तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा यस, बिल्कुल प्रिजर्व करो। क्यों प्रिजर्व करना है? इससे हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इससे हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है ना। हाउ रिच आर कल्चर वॉज, व्हाट आर हिस्ट्री होल्ड्स फॉर अस, टाइम का सोसाइटी को हम रीड कर पाते हैं, जिससे हम आगे के पैटर्न्स को डिकोड कर पाते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोटेक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी अर्जेंट। तो देखो 2003 में अटल बिहारी गवर्नमेंट आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, उस टाइम पे एक मिशन लॉन्च हुआ, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन किस लिए हुआ? ताकि ये जो हस्तलिखित चीज़ें हैं ना, हैंड रिटन, इनको प्रिजर्व कर लूँ। तो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च हुआ। इतना तुम खुद से गेस कर लोगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगी, क्योंकि कल्चर ही तो प्रोटेक्ट हो रहा है, मैन्यूस्क्रिप्ट में कल्चर ही तो है आपका। ये तो तुम ये प्रेडिक्ट कर लेगे, ठीक। तो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया। अब वो कुछ और रीजन है, वी डोंट हैव टू गेट इनटू इट, काम नहीं कर पाया अच्छे से। इसी चीज़ को रीलॉन्च किया मोदी जी ने इस साल के बजट में। प्रोडक्ट यही है, पैकेजिंग नहीं कर दी, ज्ञान, और एक स्कीम लॉन्च की, ज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। और इस साल के बजट में दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इटसेल्फ। ये भी क्या कर रहा है, ज्ञान भारतम मिशन भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस मिशन के अंदर वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। समझ में आ रहा है? इंडिया के अलग अलग पार्ट से हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन के अंडर ही काम कर रहा है। दिस वॉज द स्कीम लॉन्च इन 2003, काम नहीं करती थी, मोदी जी हैज रीलॉन्च्ड इट बाय द नेम ज्ञान भारतम मिशन। दिस विल वर्क अंडर नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन इटसेल्फ। स्कीम नहीं चेंज हुई है, बस अब स्कीम को काम लगा दिया है। काम लगाने के लिए उसको रीब्रांडिंग करना जरूरी था, रीलॉन्चिंग करा इस नाम से, ठीक। अंडरस्टूड? अब हम कर क्या रहे हैं, इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए इस साल के 11 सितंबर 2025 को हम दिल्ली में, हम मतलब कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज डूइंग इन दिल्ली इज कि हम एक इंटरनेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जहाँ पे हम दुनिया भर के अलग अलग पीपल, लाइक विल कॉल पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो ये सितंबर में वापस न्यूज़ में आएगा। याद रखो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। टीम का नाम क्या है, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन। अब ये दिल्ली में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये जो चीज़ हमें समझनी थी, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वाई 11 सितंबर, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। 11 सितंबर की डेट इसलिए चूज की गई क्योंकि इट वॉज 11 सितंबर when स्वामी विवेकानंद जी went to शिकागो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट had come propagating different different religions. स्वामी विवेकानंद जी वाज रिप्रेजेंटिंग हिंदुइज्म, सो ही वेंट टू शिकागो 1893, जहाँ आपने सुना होगा उन्होंने जीरो पे एक स्पीच दी थी। तो दैट इज वाई टू सेलिब्रेट स्वामी विवेकानंद जी शिकागो स्पीच, वेरी पॉपुलर शिकागो स्पीच, आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, कॉल 11 सितंबर। अब तुम बोलोगे यार ये वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट से क्यों 11 सितंबर क्यों? देखो मेरी बात सुनो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही तो है जो हमें अपने हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बता रही है। मैंने आपको लिखा ना, ये देखो वेद, कुरान, बाइबल्स। तो रिलीजन के बारे में बात कहाँ हो रही थी, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में। कब हुई थी? 1893 में। इसीलिए 11 सितंबर को, तो हम 11 सितंबर को एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट, जिसका नाम है इंटरनेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी बर्थडे इज ऑन 12 जनवरी। रीजन वाई वी सेलिब्रेट 12 जनवरी एज नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। चलो, चलो नाउ अंडरस्टूड। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट है, ज्ञान भारतम मिशन स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेस। So if you want, you can read it from here, or either you can directly read from the newspaper.
बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यू शुड कीप इन माइंड। चलो, अभी संचार मित्र स्कीम क्या है? देखो आप ऐसे समझ लो, इसके लिए हमें पीपीटी खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ऐसे समझो इसको, लाइक वेरी बेसिक। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बच्चों को उठा रही है। अभी पहले टॉप के 18 कॉलेज से बच्चे उठाएंगे और उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि साइबर सिक्योर कैसे बनो, कि साइबर सिक्योरिटी ना हो, ऑनलाइन फ्रॉड्स ना हो, साइबर बुलिंग ना हो, ऑल सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन क्राइम्स यू कैन इमेजिन। इसके लिए वील ट्रेन दीज पीपल। अभी हमने ट्रेन कर दिए। अब हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आगे जाके अवेयरनेस फैलाएं और ट्रेन करें। तो वी कांट ट्रेन ऑल द पीपल, देयर वुड बी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। सरकार कैनॉट bear it, the government cannot bear it, because the cost will be very high. So what the government is doing is it is getting in good people, top law, let's say engineering students from different colleges, teaching them, making them aware about all of these online frauds and online sort of crimes and how to resolve them also. Now what the government is expecting from these people is that once I have trained you, you will go and teach some other people also. That is why these people, ये जो बीच में बच्चे हैं ना, जो सरकार और मासिस के बीच में गैप खत्म करेंगे, इनसे सीख के इधर जाएंगे, उन्हीं को बोला गया संचार मित्र। संचार मीन्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। संचार मतलब क्या होता है? दूर संचार। संचार मीन्स ब्रॉडकास्टिंग, लोगों को बताना। संचार मित्र, ब्रॉडकास्टिंग करने वाला दोस्त, मतलब एक तरीके का वायरलेस, कि आपने किसी को इन्फॉर्मेशन बताई और वो आगे जाके सबको बता रहा है। तो गॉसिप मॉन्गर, गॉसिप मॉन्गर नहीं समझेंगे, ये तो सिखाएंगे ना लोगों को। आप याद रखो, संचार मित्र, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस ध्यान रखिए कि छोटा सा सरकारी इनिशिएटिव है, विच इज समथिंग विच यू शुड नो, विच यू शुड नो। चलो, हाँ, अब ये समझ लो क्या है अस्त्र मिसाइल, थोड़ा सा सीखो। देखो, पॉसिबली मिसाइल क्या हो सकती है? आपने सरफेस से मारी मिसाइल चलाई और वो एयर में चली गई, ये वाला मिसाइल कहलाएगा सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट? आई एम टेलिंग द टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। इसके बाद या तो आपने हवा में ही मिसाइल मारा और हवा में ही ब्लास्ट करा दिया, तो एयर टू एयर मिसाइल हो गई, है ना? या फिर आपने सरफेस से मिसाइल लॉन्च की और सरफेस पे ही जाके गिराई, तो सरफेस टू सरफेस हो गई। तीन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या तो ए टू ए मार दो, ए टू एयर, या तो फिर एस टू ए, सरफेस टू एयर, या फिर सरफेस टू सरफेस। में आ रहा है पक्का? अब ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया कि ये एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब हम किसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं? अस्त्र मिसाइल का। पहले ये समझ लो, अस्त्र मिसाइल दो लोगों ने बनाई है। एक तो आपका डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जितनी डिफेंस की रिसर्च होती है वो यही करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे काम करते हैं। इसके साथ में दूसरी जो बॉडी आपके साथ आ गई है वो है इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स, अच्छा एयरफोर्स डे कब होता है आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने कोलैब करके एक मिसाइल बनाया अस्त्र नाम का। अब अस्त्र बिकम्स इंपॉर्टेंट, हमें अस्त्र की थोड़ी थोड़ी सी बेसिक समझना है। पहले तो मैंने आपको बताया मिसाइल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू, सर्विस टू एयर, सर्विस टू सर्विस, एयर टू एयर। अस्त्र कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर, मतलब सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है। चलो, ये इंडिया की पहली विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। समझो, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, BBRAAM को बढ़िया से समझते हैं। देखो, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मैंने क्या बोला? अस्त्र क्या है? इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस मेड, मतलब इंडिया की पहली जो मेड इन इंडिया मिसाइल है, कौन सी? क्या इंडिया ने आज तक एयर टू एयर मिसाइल नहीं बनाई होगी? बिल्कुल बनाई होगी, बिल्कुल बनाई होगी। तो एयर टू एयर बता दिया, तो इसमें खास बात क्या है? खास बात है बियॉन्ड विजुअल रेंज। विजुअल रेंज क्या होता है? विजुअल क्या होता है? ऑडियो विजुअल, ऑडियो मतलब जो सुनते हैं, विजुअल मतलब जो देखते हैं। विजुअल रेंज, वी मतलब बियॉन्ड। इंग्लिश में बियॉन्ड का मतलब होता है विजुअल, उस चीज़ के पार। तो विजुअल रेंज के पार मतलब ऐसी मिसाइल जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ तब भी जाके इट इज गेटिंग ऑपरेटेड। मतलब समझो, जो इंसान की आंखें हैं ना, वो 20 नॉटिकल माइल की स्पीड देख सकती हैं मैक्सिमम, विच इज़ अराउंड 37 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए आप देखोगे जब ट्रेन ट्रेन ऑब्वियसली से तेज चलती है तो आपको कुछ दिखता नहीं है, तो आप 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देख सकते हो। इसके ऊपर की स्पीड यू कैन नॉट वॉच। नॉटिकल माइल में जाओगे तो ये एक अलग यूनिट है। तो ये इंसान की कैपेसिटी है। अब ये जो तो दो टाइप की मिसाइल्स हैं। एक तो है विजुअल रेंज, जो इस स्पीड से कम चलती है, जो मुझे दिखेगी, जाएगी तो दिखेगी। और एक होगी बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब मिसाइल चलेगी और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि वो 37 किलोमीटर पर आवर से तेज चल रही है। तो ये ना इंडिया की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बनाई किसने है? डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, ये इसकी जो खासियत थी वो सीखने वाली बात यही थी। बाकी इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, मतलब यहाँ से मारूंगा तो 100 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। ये उसकी मिसाइल की क्या होती है? रेंज। so that is that, I hope you would have understood this. Beyond visual range, beyond visual range air to air missile, India's first beyond visual range air to air missile is
अस्त्र becomes very important for your examination. थोड़ा सा देख के आइए कि देखिए आपको जो इसमें समझने वाला पार्ट था, I have already made sure that you are learning this. तो इंडिया का पहला BBRAM मिसाइल है, तो ये अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या दुनिया में सिर्फ इंडिया ने ही ये बनाया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस का एक मिसाइल है AMRAAM, अमराम नाम से, यू गूगल इट बाय द नेम अमराम। तो अमराम वाज द फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सा है? अस्त्र। So a very proud moment for us Indians. Probably I'll see you tomorrow now. So we had around 4 to 5 news to be done today. I hope you would read it from your newspaper and make your short notes so that you don't have to panic just before your examination. And in case you are reading from the newspaper, this is gonna be an icing on the cake because this will help you eventually in your critical reasoning and other sections of your law entrance examination. Mostly your paper is about reading, right? So if you're reading it, not like, don't consider it as a waste of time, rather consider it as some sort of work that you are putting in for your examination only. So that is that. I'll see you tomorrow now. Thank you.